فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ شمشاباد بین الاقوامی ایئرپورٹ پر بھاری مقدار میں منشیات برآمد کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ڈی آر آئی حکام نے تقریباً 7 کروڑ روپے مالیت کی منشیات ضبط کی ہیں۔ ڈی آر آئی حکام نے بتایا کہ بینکاک سے آنے والے 2 مسافروں کو منشیات کے ساتھ حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کی جا رہی۔ کاماریڈی ضلع ایس پی سندھو شرما نے کہا ہے کہ کاماریڈی ضلع میں ڈسٹرکٹ پولیس ایکٹ کا نفاذ عمل میں لایا گیا ہے۔ ضلع کاماریڈی میں آج سے 7 تاریخ تک پولیس ایکٹ کا نفاذ عمل میں لایا جا رہا۔ عوام پولیس کی اجازت کے بغیر دھرنے، احتجاج، جلسے، جلوس اور دیگر اجتماعی پروگرام نہیں کر سکتی۔ ضلع ایس پی سندھو شرما نے کہا کہ قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ایم بی ٹی ترجمان امجد اللہ خان خالد نے کہا کہ راہل گاندھی کی محبت کی دکان میں نفرت کا کاروبار عروج پر چل رہا ہے، اور کہا کہ راہل گاندھی ساری دنیا کے واقعات پر بیان دیتے ہیں، لیکن تلنگانہ میں ان کی ہی سرکار میں مسلمانوں پر جو ظلم کیا جا رہا وہ اس پر کچھ نہیں بولتے، ایسا کیوں ہے؟ ایم بی ٹی پارٹی لیڈر امجد اللہ خان خالد نے آصف آباد ڈسٹرکٹ میں ہو رہے مسلمانوں پر ظلم پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی کو سخت لہجے میں تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ساری دنیا میں دورہ کرتے ہوئے، پدیاترا کرتے ہوئے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں کہ محبت کی دکان کھول رہے، لیکن تلنگانہ کے ایک ضلع میں اس طرح کے واقعات آ رہے جہاں پر مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم کیا جا رہا، چاہے وہ جینور کا واقعہ ہو جہاں پر دکانات اب تک بھی بند ہیں، یا پھر ایک اور واقعہ جہاں پر ایک درخت سے باندھ کر ایک نوجوان کی پٹائی کی گئی تھی، یا پھر ایک بزرگ شخص کا واقعہ جہاں پر ایک سائیکل پر جانے والے شخص پر 3 نوجوانوں نے حملہ کیا تھا۔ دیکھیے ایم بی ٹی پارٹی لیڈر امجد اللہ خان خالد نے کیا کہا۔ راہل گاندھی محبت کی دکان میں نفرت کا کاروبار ہو رہا ہے۔ راہل گاندھی کو ساری دنیا کی فکر ہے اور اس پر بیان دیتے ہیں، لیکن تلنگانہ میں ان کی سرکار کے تحت جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ نہیں بول رہے ہیں۔ میں یہ آصف آباد ڈسٹرکٹ پہ خاص طور پہ یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ مختلف گاؤں میں حملے ہو رہے ہیں۔ آصف آباد میں قمر ابھیم ڈسٹرکٹ آصف آباد جو ہے 2 دن پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ عابد حسین نامی لڑکے کو 19 سال کے لڑکے کو جھاڑ کو بن کے مارے کہ وہ کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ پایا گیا بول کر جھاڑ بنے اس کو بن کے مارے۔ وہاں پر جو ہے جو مارتنڈی ولیج بیجور منڈل کاغذ نگر ٹاؤن میں ہوا، آج کی تاریخ تک ایف آئی آر نہیں ہوا، اس کے اوپر ایک گرفتاری نہیں ہوئی۔ تقریباً آپ وہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ کھلا اعلان وہ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ جینور میں 50 دن سے فساد کے بعد سے آج کی تاریخ تک دکانات بند ہیں، مسلمانوں کے دکان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو اتوار کا بازار، جمعرات کا بازار، پیر کا بازار جو لگتے اس میں مسلمانوں کو دکان لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ غلطی سے بولیے یا دیوالی کے سامنے دکانات کھولے تھے مسلمان، بعض ہفتہ پولیس کی گاڑی میں گون ذات کے ان کے جو لیڈر ہے بی جے پی کے، پولیس کی گاڑی میں پولیس کے عملے میں بیٹھ کے مسلمانوں کو دھمکیاں دے کے دکانیں بند کر رہے ہیں، اور جب مسلمان نہیں بند کرتے بول رہے ہیں تو پولیس والے جو ہے مسلمانوں کو دکانیں بند کر رہے ہیں زبردستی۔ یہ بھی ویڈیو آیا کل 2 دن، یعنی جو پچھلی جو عید گئی، جو جلوس نکلا، جوس سینٹر پہ حملہ کرے،
वो बेचारे, उनका नाम नहीं मालूम मेरे को, उनसे के जूस सेंटर पे पैर तोड़ दिए उसका मार के, जख्मी को पुलिस केस में बुक कर दिए, वो बेचारे बेल के लिए छुपते फिर रहे उन्होंने। ये आबिद हुसैन का वाकया हुआ। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC की जानिब से उम्मीदवारों को मतला किया गया जिन्होंने ग्रुप 3 खिदमात की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन नंबर 29/2022 मोरखा 30 दिसंबर 2022 के लिए दरख्वास्त दी थी। उनके ग्रुप 3 खिदमात की भर्ती का इम्तिहान 17 नवंबर 2024 के लिए 2 सेशन, पेपर 1 सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक और पेपर 2 दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक और 18 नवंबर 2024 पेपर 10 बजे से 12:30 बजे तक मुनक्किद होगा। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया कि वो अपने हॉल टिकट 10 नवंबर 2024 से कमीशन के वेबसाइट www.tspsc.government.in पर डाउनलोड कर लें। TSPSC ने मतलब किया कि उम्मीदवारों को सुबह 8:30 बजे से सुबह के सेशन के लिए और दोपहर के सेशन के लिए 1:30 बजे से इम्तिहानी मरकज में जाने की इजाजत होगी। सुबह के सेशन के लिए सुबह 9:30 बजे और दोपहर के सेशन के लिए 2:30 बजे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और इसके बाद किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया कि वो बाकी सेशंस के लिए वही हॉल टिकट इस्तेमाल करें जो पहले सेशन के लिए डाउनलोड किया गया था। उन्हें अपने हॉल टिकट और सवालिया पर्चे तमाम सेशन से उस वक्त तक रखना चाहिए जब तक कि हतमी इंतखाब का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता, क्योंकि बाद में कोई डुप्लीकेट हॉल टिकट जारी नहीं किया जाएगा। बताया गया है कि अगर उम्मीदवारों को तकनीकी मसाइल का सामना करना पड़ता है तो उन्हें मशवरा दिया जाता है कि वो TSPSC टेक्निकल हेल्प डेस्क से 0402354218 पर राब्ता करें या फिर helpdesk@tspsc.government.in पर ईमेल करें। तमाम काम के दिनों में हेल्प डेस्क के औकात सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे और दोपहर 1:30 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे। कांग्रेस हुकूमत जिसने गरीबों के लिए घर के ख्वाब को पूरा करने के बड़े वादे किए थे, इख्तिदार में आने के बाद अपने वादों पर अमल दरामद करने में नाकाम रही है। हर बयान और ऐलान अवाम को गुमराह करने के लिए नजर आता है। ताज़ा तरीन मिसाल इंदिरा घरों की मुहिम है, जहां कर्ज माफी के बारे में अफवाहों ने लोगों को उलझन में मुब्तला कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर कांग्रेस हुकूमत इस साल इंदिरा घर सिर्फ उन लोगों को देने पर गौर कर रही जिनके पास अपनी जमीन और राशन कार्ड मौजूद है। ये तब्दीली बहुत से लोगों के लिए मायूस कुन साबित हुई है, क्योंकि हुकूमत ने पहले यकीन दहानी कराई थी कि उन्हें घर फराहम किए जाएंगे जिनके पास जमीन नहीं है। दरियासना अवामी राब्ते के दौरान इंदिरा घरों के लिए 80 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई है, जिनमें से 30 लाख दरख्वास्त दहिंदगान के पास राशन कार्ड नहीं है। ये सूरत हाल लाखों गरीब अफराद के लिए मुमकिना नाइंसाफी का खदशा बढ़ा देती है, जो अब बेयकीनी की हालत में है। TBCC के सदर महेश कुमार गौड़ ने तस्दीक की कि कांग्रेस पार्टी 7 दिसंबर तक मुकम्मल तौर पर ज़ात की बुनियाद पर गैर जानिबदाराना मरदमशुमारी मुकम्मल करने का इरादा रखती है। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने पिछली हुकूमत के मुबैना अवाम मुखालिफ कार्रवाइयों पर तनकीद की। उन्होंने रुकन कौंसल तीनमार मौलाना के हरीश राव को दिए गए हालिया चैलेंज का हवाला देते हुए कहा कि हरीश राव जो चैलेंजेस कबूल करने में माहिर है, उनको तीनमार मौलाना का चैलेंज कबूल करते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनमें हिम्मत है तो हरीश राव को इस्तीफा देकर हमसे बात करें, फिर हम हकीकत क्या है उन्हें देखेंगे। महेश कुमार गौड़ ने ऐलान किया कि जिले कांग्रेस के सदूर और सिविल सोसाइटी के लीडरों के साथ 2 नवंबर को एक मीटिंग की जा रही, जिसके बाद 5 या 6 नवंबर को रियासत भर के नुमाइंदों के साथ जात पात की मरदमशुमारी के मसाइल को हल करने के लिए एक वसी मीटिंग होगी। मरदमशुमारी की अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हर कम्युनिटी की मौजूदगी के तनासुब से नुमाइंदगी की वकालत करते हुए कौम के लिए एक विजन को आगे बढ़ाया। उन्होंने मजीद कहा कि ये इज्तिमा राहुल गांधी के विजन के तई कांग्रेस की वाबस्तगी की अक्कासी करता है, जिसका मकसद तेलंगाना को मुनसिफाना नुमाइंदगी और समाजी इंसाफ के मॉडल में तब्दील करना है। एक बार में शराब नौशी के बाद बिल पूछने पर नशे में धुत तेलुगुदेशम पार्टी के लीडर और उसके साथियों ने बार को नुकसान पहुंचाया। तफसीलात के मुताबिक नरसरावपेट
तेलुगु देशम पार्टी जिले के तर्जुमान चिल्ला सुब्बा राव ने अपने हामियों के साथ वनुकोंडा रोड पर एक बार में फुल शराब पी। जब मैनेजर्स ने बिल अदा करने के लिए कहा तो सुब्बा राव ने अपने पैरोकारों हामियों के साथ मिलकर बार के फर्नीचर को तबाह कर दिया। बार के मैनेजर ने इस वाक़े के बारे में पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। तेलंगाना के आदिलाबाद के डीएसपी एल जीवन रेड्डी ने एक सहाफती बयान जारी करते हुए कहा है कि आदिलाबाद मुस्तकिल में माजी में पेश आए एक वाक़े के मुतालिक इस वीडियो को बाज़ शरपसंद अनासर चंद व्हाट्सएप ग्रुप्स में फैलाते हुए पुरअमन माहौल को मकदर करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इंतबाह दिया कि कई साल पुरानी वीडियोस को ताज़ा वाक़े के तौर पर पेश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी जीवन रेड्डी ने कहा है कि बरसों पहले के वाक़यात की वीडियोस को दोबारा व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करके अवाम को मुश्तिल किया जा रहा। उन्होंने खबरदार किया कि ऐसी अफवाहें फैलाने वालों, शेयर करने वालों और ग्रुप एडमिन्स जो इन वीडियोस को नहीं हटाते उन सब के ऊपर पुलिस की कड़ी नजर है। ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी ने व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन्स को मशवरा दिया कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और झूठी अफवाहें शेयर न करें। अगर कोई इश्तियाल अंगेज मवाद ग्रुप में शेयर होता है तो उसे फौरी तौर पर हटा दिया जाए। जो लोग अमन व अमान को नुकसान पहुँचाने या इश्तियाल फैलाने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी इक़दाम किए जाएंगे। डीएसपी जीवन रेड्डी ने बताया कि जिले पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ हर मुमकिन नाखुशगवार सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए हिफाजती इक़दाम कर रही ताकि अवाम अमन व सुकून से अपने त्यौहार मना सकें। बीटेक के तलबा ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक प्रकाशम मार्कापुरम मंडल में दरिमाडुगु के करीब 3 इंजीनियरिंग कॉलेजों के तलबा के दरमियान मारपीट का वाक़या पेश आया। A1 ग्लोबल, इंदिरा और जॉर्जिया इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा ने सड़क पर एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस बात की इत्तला पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने वहां पहुंचकर हालात का जायजा लिया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया। हमले की मुकम्मल तफसीलात अभी तक मालूम नहीं हुई। కానా మా కాలేజీకి వచ్చి మేము కొడతారు మమ్మల్ని कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने 10 जनपद में मजदूरों के साथ काम किया, जहां उन्होंने दीवार पर पुट्टी लगाई और मजदूरों से बातचीत करते हुए उनकी मुश्किलात सुनी। ये वाक़या उस वक्त सामने आया जब उन्होंने मजदूरों के साथ वक्त गुजारा और उनकी मेहनत की अहमियत पर जोर दिया। कांग्रेस पार्टी ने अपने रस्मी सोशल मीडिया हैंडल पर इस वाक़े की तस्वीर शेयर की, जिनमें राहुल गांधी मजदूरों के साथ चुनाई करते हुए नजर आ रहे। पार्टी ने लिखा, जननायक राहुल गांधी ने पेंटर साथियों के काम में हाथ बटाया और उनकी मेहनत से मुतल्लिक़ मसाइल पर बातचीत की। ये हुनरमंद लोग हमारे घरों को रोशन करते हैं, मगर खुद उनकी जिंदगी चैलेंजेस से भरी है। उनकी खुशहाली की रोशनी भरना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नई वीडियो भी शेयर की, जिसमें वो पेंटर्स और मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हारों से बात कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस वीडियो में वो खुद घर की पेंटिंग करते भी नजर आ रहे हैं, जो उनकी मजदूरों के साथ वाबस्तगी और उनकी मेहनत का इतराफ है। समाजवादी पार्टी एसपी के सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी की अवाम दुश्मन पॉलिसियों की वजह से त्योहारों की खुशियां मांद पड़ गई। मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी हुकूमत की जानिब से अवाम पर मुसल्लत की गई महा महंगाई ने लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी। अखिलेश यादव ने कहा कि पुराने मुहावरे महंगे तेल ने अवाम का तेल निकाल दिया का जिक्र आज के दौर में इंतहाई मुनासिब मालूम होता है। उनका कहना था कि बीजेपी के मौशी निज़ाम में कीमतें बढ़ने का सबब तलब
नहीं बल्कि बेकाबू मुनाफाखोरी है। समाजवादी पार्टी की जानिब से जारी करदा बयान में अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी मुनाफाखोरी और बदउनवानी दोनों के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि अवाम को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बेशुमार मुश्किलात का सामना है, जबकि हुकूमत बड़े बड़े इश्तिहारात के जरिए नामालूम तरक्की की तारीफें कर रही है। अखिलेश ने कहा कि अगर रियासत में किसी किस्म की तरक्की हो रही तो वो सिर्फ मुजरिमों और जुराइम की तरक्की है। तमिलनाडु के त्रिची जिले में दरियाए कावेरी के किनारे इंदनालूरू मंदिर के एक करीब रॉकेट लॉन्चर दरियाफ्त हुआ है। पुलिस ने उसे भारतीय फौज के 117 इन्फेंट्री बटालियन के हवाले कर दिया। इसकी असलियत का तयन करने के लिए तहकीकात जारी है, जिससे मुकामी लोगों में तशवीश फैल गई है। आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। வீட்டில் இருக்கா வெடிச்ச மாதிரி எனக்கு தெரியுது. வெடிச்சதா சார்? அதுதான் அங்கே தானே வரும். இந்த உள்ள இருக்கா? முன்னாடி தான் சார். வாங்க வாங்க. மேலே பாப்பா. அப்படியே எடுங்க சார். தேவை சொல்லு. சொல்லிட்டேன் ஃபோன் பண்ணிட்டேன். இதில் எடுக்கக்கூடாது. அவ்வளோதான். तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।